Hey, hi Krishna, can you hear me? Hi, sir. Huh? How are you? Yeah, fine, sir. Great. Are you better? Eh? Actually, I got one freelancing job. Oh, great. Yeah. What job? It's actually prompt engineering. AI models जो chat GPT जैसा होता है भी वो projects आते हैं we have to train chat GPT through prompts. It's like just like teaching a child. They Right. are going to So, pay around $10 to $15 per hour. So if I could work for 4 hours a day and the rest of my time I could use for my passion. So something good came out of the way. oh, lovely. So, what do you do? You train the AI model. Yeah, yeah. In which subject? How do you do that? Or what is it? Uh, in coding and mathematics or whatever the subject that is required for, they will assign us to train in particular subject and we will train them. So, but then you need to have that the knowledge of that subject also. No? Sir, I have masters in computer science. हाँ मतलब क्या है मतलब कि Uh, मतलब you will then deal with only subjects around computers, right? yeah, yeah. I हाँ मतलब have कोई knowledge. some AI model comes, some such job comes to you कि, in let's psychology, you won't be able to, right? That's what we question. Yeah, yeah, and even they won't allow us either. They'll ask for psycho. I mean, they will hire who has psychological degree, master's Right, degree. right. They want experts. So Oh, right. I see. Chal, in the meantime, uh, acha, you were only joining. So in the uh, meantime, you do one thing, Krishna. Quickly, you have numbers of Rizwan and Harsh. yes, sir. एक बार उन लोग दोनों को फटाफट फोन करना. क्या है, क्या स्थिति Harsh Naya आएगा. He already told in the WhatsApp group. मैं है? रिजवान ओके. को कॉल करता हूँ. हाँ, रिजॉन को. हे हाय रिजवान. आवाज आ रही है? ओह गॉड. अरे आज आ गया वो कृष्णा, आ गया तू आज अब. हाँ सर, कॉल किया था. रिजवान है, ऑनलाइन आ हाँ. गया है. रिजवान तू, आवाज आ रही है तुझे? हाँ तो आज का कार्यक्रम फिर शुरू करते हैं, ठीक है? सो टुडे, सी द प्रॉब्लम विथ यू गाइस इज, मैंने बोल तो दिया कि आई विल आल्सो यू नो टेक अ सेशन ऑन मिजॉन से.
But in the, like last week, I realized last week we were supposed to have the class, and then suddenly last moment something came up and I couldn't take the class. Last week I realized ki, why am I dealing mise-en-scène with you guys? Mise-en-scène is something that we are taught in the third year of our film school, you know. So this is थर्ड ईयर में सिखाते सर विजन से? right. हाँ, of course. थर्ड ईयर में 15 दिन का वर्कशॉप हुआ था हमारा. Oh, so that must be a complex theory or something. It's a very complex. It is one something that needs like years of understanding of films and years of watching cinema. You know, Hmm. if you have not seen enough cinema, you won't understand it. मतलब वो तो फिर बुकिश वो जो मैंने तुम लोगों को भेजा था ना टेक्स्ट, वो हम्म। पढ़ा गया जॉनसन पे. नहीं नहीं पता ना मैं। रिजवान तूने पढ़ा जॉनसन पे जो मैंने वो भेजा था. मैं इस पे अपलोड नहीं कर सकता ना कहीं पे. अब व्हाट्सएप पे है ना सर, आप भेज दिया वहाँ, वहाँ पर अ, है मेरे। हाँ, व्हाट्सएप पे है. इनफैक्ट मैं अभी फॉरवर्ड करता हूँ. और एक काम कर, रिजवान को भी फॉरवर्ड कर. पता नहीं वो उसने देखा भी है कि नहीं. मैंने इसको दिया था देवदत्ता को. सर स्क्रीन शेयर करो। वेट, होल्ड ऑन. यू हैव इट विद यू. हाँ हाँ, शैल आई शेयर माय स्क्रीन? हाँ, शेयर ना, शेयर ना. हाँ। No, I just wanted to know if you have the text. You don't have to share because I'm not even touching that. That ओके। is too much in detail. That is just imagine. Rizwan, can you hear me? I mean, I don't know. You should respond. If you're attending the class, be there in the class. Yeah, this is the text. रिजवान, रिजवान मेरे भाई. तो एक काम कर कृष्णा, हाँ सर। ये रिजवान को फॉरवर्ड कर दे. हाँ आई एम ठीक। श्योर देवदत्ता ने दे दिया है उसको भी. वो ग्रुप पे भेज दिया सर। ग्रुप पे भेज दिया ना. हाँ, तो ठीक है, ठीक है, तब ठीक है. अच्छा, ये मैसेज कर रहा है. हाँ, ठीक है. सो कीप रिस्पॉन्डिंग रिजवान. हाँ, तो दिस इज समथिंग आई वांट टू. सो लाइक यहीं पे छोड़ दे. पॉज कर, पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा. अच्छा। कृष्णा, ओके ओके जस्ट। मतलब लेट्स जस्ट स्टिक टू वन इमेज. ओके एंड सर। because I am not going to teach you the theoretical aspects of Nicholson right away. I want you guys to understand. Just go back. Go back. Get me one some other picture. I'll tell you which one. Scroll down. ओके, ये वाला मैं छोड़ दूँ. यहाँ पे अभी पॉज करके रख, ठीक है. इस पे हम आएंगे, मतलब ये भी आने का बात नहीं है. ये कौन से पेज पे, पेज नंबर क्या है? 10 है ना. 10। हाँ। सो अभी पेज नंबर 1 पे आ जाए. द डेफिनेशन ऑफ वहाँ पे. एंड we'll begin from there. एंड उसके बाद से briefly. So I thought कि यार I did a very stupid thing because it is never going to come in your exam. It is not entrance में mise-en-scène का MISC भी नहीं आएगा, मिजे में नहीं आएगा. So that is out of question. This is just waste of time. But then I thought, okay, if now that I've committed, let's not waste our time. Let's utilize it in a way that will help us in our preparation for the exam, which is more meaningful, right? या यस सर। सो मेजॉन पढ़ने का रीजन ये नहीं है कि तुमको पूछेगा कि एक्सप्लेन मेजॉन, बिकॉज दैट इज इफ यू नो द, अगर वो पूछ लिया व्हाट इज मेजॉन और किसी ने अच्छे से आंसर लिख लिया उसका, तो उसको बोलेगा फिर बाद में कि भाई तू इस बंदे को तो बिल्कुल भी एफटीआई में मत लो क्योंकि इसको बहुत कुछ पता है. और इससे ज्यादा के डिजर्विंग कोई कैंडिडेट होगा उसको ले लो. इसको तो ऑलरेडी पता है, ये तो जस्ट जाकर के काम काम करके. 1 मिनट और.
Yeah. So then in that respect, we won't deal mise-en-scène in details at all. No, it's waste of time. But we'll have to understand what is mise-en-scène very briefly. But for your understanding, for your benefit, you must read the this particular article that I have sent. Okay. This is a very important chapter. Very one reading and you will get exactly what, not exactly, you'll at least understand where what what do we mean by mise-en-scène. In fact, even after 15-day workshop of mise-en-scène, none of us were clear exactly what mise-en-scène is. It is that complex in a way. Okay. But I have tried to make this session as simple, as digestible as possible. So let's begin with the uh, definition. रिजवान पढ़ेगा क्या डेफिनेशन? रिजवान फिर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो कृष्णा यू रीड द डेफिनेशन. हाँ. सो ये जो मार्क किया वही है सर? वो पहला पैराग्राफ, पहला वाला पूरा पैराग्राफ ही पढ़ ले. ठीक है. What is mise-en-scène? In the original French, mise-en-scène, pronounced mise-en-scène, means putting into the scene, and it was first applied to the practice of directing plays. Film scholars extending the term to film direction use the term to signify that director's control over what appears in the film frame. As you could expect, mise-en-scène includes those aspects of film that overlap with the art of theater, setting, lighting, costume, and the behavior of figures. In controlling the mise-en-scène, the director stages the event for the camera. Okay. Now what do you understand? What did you understand? इसको ना भूल जाओ. अब इसको you can get to page number 10. You don't need this text at all. Hmm. You can get to page number 10 or whatever. Not right away. My point is, what did you understand of this? What do you know? So, given a frame, director is director wants to convey particular information or to tell a story using lighting or costume or everything that appears within the frame. Even the space between the character or the foreground or the background elements that are present within the frame. Uh, so that's what I understood. So now mise-en-scène, where is it coming from? What is it? Let me just have a brief historical, introduction to you. Mm. So before cinema, mise-en-scène has been a part of. Uh, uh, हाँ रिजवान, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि भाई अभी ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इस किस तरह से यहाँ पे एंगेज रही. मैं 3 बार 4 बार रिजवान बोलता हूँ, आपका रिस्पॉन्स नहीं आता तो मुझे समझ में नहीं आता आप है या नहीं. अच्छा, तो इशू है उसको रिजॉल्व करिए फट से. सो mise-en-scène comes from the term comes from the French literary, works. In fact, it was adopted to learn to understand uh, the French theater space. Okay, mise-en-scène का ट्रांसलिटरेशन जो है, मीनिंग ये है व्हाट्स देयर इन द सीन. Mm. जो भी हम एक शॉट लेते हैं, हमने सबने शॉट लिया है, तूने भी कुछ तो शूट किया ही है, कितना मोबाइल पे. तो जब तू शूट करता है तो कुछ तो दिमाग में रख के शूट करता है कैमरा को, है ना. जैसे Mm. अभी तो मान ले कि गया सी साइड पे, बीच पे गया. Mm. तो बीच पे गया और तूने फट से, तुझे कुछ तो मेस्मराइजिंग लगा, तूने बोला अरे यार ये तो कमाल की जगह है. फोन निकाला और बटन दबा दिया.
और शूट होने लग गया रिकॉर्ड, या कहीं माउंटेन्स पे गया तो वहां पे गया तो वहां mesmerizing, oh wow, what it is. And you started clicking, you click the thing and you start recording. Now when you are doing that, when you're recording, your brain is automatically trying to capture what you felt overwhelmed with. अगर बीच पे गया है और तुझे वहां पे बीच देख करके उसको हुआ और तुझे लगा, मन के अंदर से कंपल्शन हुआ कि आई विल रिकॉर्ड दिस एंड सेंड इट टू माय मदर और माय ब्रदर्स और माय फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली अब बीच पे आके तू स्काई को नहीं रिकॉर्ड कर, करेक्ट? अगर ये कंपल्शन हुआ, फोन निकाला तूने और फिर स्काई में रिकॉर्डिंग करने लग गया बर्ड्स का, दिस इज नॉट, मतलब वो मिसमैच, इट्स, सो व्हाट यू आर पुटिंग, what your brain decides ki I should put in that frame. Like if you see my frame right now, you see this frame, right? I have definitely deliberately placed myself in the center of the frame because this is most important. This is the meaning, intent of the shot. I should be visible. I should be present. I should be in the uh, I should fill the space more than anything else. Well, I could have kept a book maybe somewhere or this panda, but it makes no sense because this is a class. This is a session that I'm having, online session with aspiring students. Now, if I place a panda and carry on with this session, will this work? No, it will be quite distracting. Very distracting. It will be extremely distracting because this is a misplace. But let's say if this online session was with school kids, and there if I had placed this somewhere here, It could it help them grab it would have attention. exactly, it could have immediately captured their imagination and brought them here. So what works with one set of situations may not work together. It will definitely not work in certain other set of situations, or it may actually might work provided there's a context. Provided this panda might just work here also, provided there was a context. Yeah, I was not. I was dealing in something else on this day. Even if you're preparing for FA entrance, it was not a mise-en-scène class. It was something else, some other topic that we would talk. So then it might have worked. Yeah? So this judgment, what will work, what will not work in a frame, and then you take that call, and then you put it in the frame. That is mise-en-scène. Now the same panda work at sometimes, the same panda may not work in certain other times. The same panda will work with some a particular target audience. The same panda will never work in a different target audience. You see, this understanding of this idea is what is mise-en-scène. It's very complex. इतना understanding is coded. अभी हम डिटेल में जाएंगे तो अपने आप थोड़ा बहुत और समझेंगे. The idea is not just understanding mise-en-scène. The idea is to have that judgment of what to put. तुमको डेफिनेशन पता चल गया कि हाँ, जो प्रेम के अंदर जो भी है वो mise-en-scène, लेकिन वो जजमेंट कैसे आएगा कि क्या डालना है कॉन्टेक्स्ट पे तो वो जजमेंट के लिए तुमको तो एक्सपीरियंस चाहिए, तुमको सिनेमैटिक एक्सप्लोरेशन चाहिए, तुमको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कैसे बिहेव करता है इन सर्टेन सिचुएशंस, और how does the human being react to certain colors or certain sounds. So all that takes time, which is why mise-en-scène is actually never taught in the first year, second year. Forget about first year, second year, third year, at least in my times. अभी शायद second year में shift किया है. So anyways, so this understanding is important.
And when you have that understanding, you become master when you have shot like 8, 10 films, and you gain that understanding. You know exactly how to cut your shot. You know how to exactly take the shot. So when you gain that understanding with trial and errors and experimenting with audiences' imaginations, you become a master. Okay. And then people say, "Oh, this guy has a very solid grasp over mise en scène." Now, first, let us break it down to several aspects. It says, definition says, mise-en-scène includes those aspects of film that overlap with the art of theater, setting, lighting, costume, and behavior of figures. चूंकि mise-en-scène कॉन्सेप्ट ही आया है थिएटर से, फ्रेंच थिएटर से, उन्होंने सिर्फ बोरो कर लिया, ठीक है, फिल्म्स में। फकअप वो नहीं था, फकअप ये हो गया कि बेवकूफ जैसा बोरो कर लिया। थिएटर में तो भाई जो सामने दिख रहा है ओपन स्पेस में, वही है तथ्य, है ना। फिल्म में तो हम उससे कई बियॉन्ड बहुत कुछ करते हैं, साउंड डिजाइन करते हैं, फिल्म में हम एडिट करते हैं। थिएटर में कहाँ एडिट होता है? फिल्म में हम कट्स लगा सकते हैं, फिल्म में हम साउंड को प्लेस कर सकते हैं खास तरीके की। ये सब चीजें तो थिएटर में नहीं कर सकते। तो थिएटर के जमाने में ये सब डेफिनेशन के का रूप बना ही नहीं था। अब लेकिन आपने फिल्म पे जब आप उसको बोरो कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, पर आप थिएटर से ही यू आर स्टिकिंग जस्ट टू द डेफिनेशंस व्हाट द थिएटर पीपल हैड गिवन, दैट्स वेरी स्टूपिड। So when you're talking of Outdated. mise-en-scène, outdated. When you're talking of mise-en-scène vis-a-vis cinema, then it expands. It expands many folds. We'll come to that. But let's first begin with these four aspects of mise-en-scène that we have borrowed straight from the theater. Setting. What is setting? हाँ रिजवान, सॉरी, मैं तुझे कौन सी बात नहीं समझ में आई, बता मुझे। मतलब भाई कुछ कर यार रिजवान, ऐसे मत कर। मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता हूँ, पता है ये तेरा चैट को देख करके तो मेरा फ्लो टूट जाता है। अब फिर तू गायब है। एनीवेज, तो क्या कहाँ थे लोग, कृष्णा? हाँ, व्हाट इज सेटिंग? सेटिंग क्या होता Location, surrounding, है? रिजवान, क्या सेटिंग क्या होता है, बताओ। सीन कहाँ हो रहे हैं वो ये। करेक्ट। सेटिंग का लिटरल मीनिंग है, और the other synonym है स्पेस। वो कौन सा स्पेस? अब मान ले मेरे कैरेक्टर को का एक ऐसा मोमेंट है जिसमें वो अपने बॉस के साथ और 3-4 बॉस के साथ उसका आर्ग्यूमेंट चल रहा है। अब वो आर्ग्यूमेंट चल रहा है, टू एंड फ्रो हो रहा है, बॉस कह रहे हैं यार तुम गलत कर रहे हो, और ये कह रहा है सर आपने फंड्स को रोक लिया, ये अच्छा नहीं किया, ये मैं कैसे करूंगा, मेरे हाथ बंद गए, मेरे को रिसर्च करना है, ये चल रहा है। अब इस तरह का डिस्कशन, वेयर डू यू एक्सपेक्ट मी, वेयर डू यू थिंक इट शुड In a हैपन? meeting room, in the office meeting room. Great, simple. Now, if I make shift this meeting room to this space, to let's say a garden, rose garden, will it affect or will it not affect? It will affect sir, definitely, because open space may on garden certain kind of creates lovely homely emotions, but Correct. discussion is Correct. completely different. It's a serious discussion, so setting is Beautiful. Beautiful. Very nice. So it definitely cannot happen in the garden until the there is a screenplay. some context. They Correct. are both friends or lovers who came to meet in a Correct. garden, and Correct. their colleagues are
they build up an own company and now they are discussing that. So Correct, correct. Or maybe in the film there is a context. There's a reason why all the board members and the my character are in the garden. Maybe mm, there's a reason. I've played, the story में ऐसे करते करते वहां पहुंच गए, and now there's a urge, immediacy of this discussion, ये वाली चर्चा कंपनी कर mm, सकते हैं। एंड अब ये तो वहाँ बोर्ड रूम तो जा नहीं सकते, तो यहीं पे कर लेते हैं। वो तो mm, अलग सिचुएशन है। mm. But in पर general, they contradict each other. बट इन जनरल अगर मैं खामखा उधर उधर कर दूंगा तो फिर वो पब्लिक बोली क्या, मैं जूता मारेगी, साले तो क्या बकवास कर सर जस्ट ए मिनट, मुझे 3 बार कॉल आया। रहा है। हाँ। रिजवान, आप हैं जब तक यहाँ पे? सर हाँ। सॉरी सर, जस्ट गिव मी 5 minutes, आई विल बी बैक अगेन। थोड़ा वार्डन बुला रहे हैं, ओके। अर्जेंट काम। आई विल बी बैक इन 5 minutes। ठीक है, जा, तब तक मैं रिजवान से बात करूँ। अरे म्यूट करके जा भाई। तो रिजवान मेरे भाई, अब आप बताइए कहाँ फंसे थे, क्या नहीं समझ में आया, कुछ बताइए, मैं बताता हूँ। नहीं, तुझे कौन सी बात एक्सप्लेन हिंदी जो है, तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। कहीं ऐसे ही कोई कुछ बोल दिया मैंने जो तुझे नहीं समझ, अभी तक समझ में आया? अभी तक सिंपल जो बातें हुई हैं मिजॉन सिंह के ऊपर, ये समझ में आई बात? सेटिंग क्या था? सेटिंग, मिजॉन सेन का एक सेटिंग शब्द, फिल्मों में सेटिंग का क्या मतलब? सेटिंग, सेटिंग शब्द का जो मतलब है स्पेस। एक सीन जो हो रही है वो कहाँ हो रही है? अरे एक मिनट, मेरे को वो चार्जर दे ना प्लीज। तो कोई एक सीन उठा लो अगर, है ना, तो वो सीन उसका एक खास जगह होगा, वहीं पे ही वो सीन, वो इधर उधर नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग एक एक सेशन में हमारी बात हुई थी कि कोई रोमांटिक कैरेक्टर सीन है, तो हम 99% हम बोले उसको भाई रोज गार्डन में कर दो, है ना, या कोई ऐसी जगह, खूबसूरत सी जगह पे करो। पर वो उस दिन का चर्चा ये था कि क्या वो रोमांटिक सीन एक हॉस्पिटल के स्पेस में हो सकती है, और अगर होगी होगी तो कैसा क्या होगा? या जैसे आज हम लोग ने बात किया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है, तो 99% हम लोग बात करेंगे कि भैया ये तो ऑफिस में के रूम में होना चाहिए। पर क्या हम ऑफिस के रूम से उठा करके उसको सड़क के बीचों बीच खड़ा कर दें उन 4-5 लोगों को? स्पेस एंड टाइम विच इज सेटिंग। अच्छा, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसकी बात कर रहे हो? उसके लिए तुम ये पूरा टेक्स्ट पढ़ो, ये जो पूरा भेजा है ना वो पढ़ोगे, समझ में आएगी। और वो भी उसके बाद ही हो सकता है कुछ समझ में ना आए, और कोई जरूरी नहीं कि समझ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत एडवांस चीज है अभी के लिए। ये जानकारी से उतने भर रखो, सीमित रखो, कि कल को जब तुम ये इस जानकारी को यूज करके अपनी जब कहानियां लिखोगे एंट्रेंस के क्वेश्चंस में, उन कहानियों में इस जानकारी से जो भी हासिल होता है, वो वो उसका सीड अगर आ गया, तो तुम्हारा थोड़ा भार बढ़ जाएगा तुम्हारी कहानी का। बस इतने भरी रखो कि जब तुम कहानी लिख रहे होगे, तो मैं इन 3-4 चीजों को ध्यान में रख करके उसको तुम लिखोगे, अदरवाइज इसका कोई उपयोगिता नहीं। मेजॉन सिंह तुमको पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। अगले बैच के साथ मैं मेजॉन सिंह का जिक्र भी नहीं करूँ, मैंने यहाँ तुम्हारे कर दिया था इसलिए मैं पढ़ा, तो अदरवाइज कोई बिल्कुल भी करने की बात नहीं। तो सेटिंग से यहाँ पे सिंपल मतलब है वो स्पेस, और वो मैंने लिखा टाइम एंड स्पेस, और टाइम एंड स्पेस जो है ना,
टाइम एंड स्पेस, और अगेन अनदर कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है जिसको कि अभी हम नहीं कर सकते, और वो तुम्हारी ये सब एडवांस फिल्म स्टूडेंट्स का टॉपिक है। तुमको उसके लिए बेसिक्स ABCD समझ में आना चाहिए। तुमको ये समझ में आना चाहिए कि कट्स लगाने से क्या फर्क पड़ता है, मोन्टाज क्या होता है। तुम ये सारी बातें प्रैक्टिकल करके जब तुम कर चुके होगे और फेल कर चुके होगे, उस पर बातें हो चुकी होंगी, उस पर चर्चाएं हो चुकी होंगी, तब तुमको समझ में आएगी बहुत सारी बातें। और उसके बाद फिर तुमको टाइम एंड स्पेस का वैल्यू भी समझ या अर्थ समझ में आएगा, इन ऑफ कोर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। सो अभी के लिए सब इतना बहुत बेसिक लेवल पे हम समझते हैं चीजों को। इस जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे थे कि सेटिंग क्या है। तो सेटिंग तो वो स्पेस जहाँ पे वो सीन घटित हो रही है, जहाँ पे उस सीन का घटित होना अ, उप होना करेक्ट है, उपयुक्त है, मतलब ना कम है ना ज्यादा है। वही उसको मैंने उपयुक्त इज नॉट द वर्ड, उस सीन का एक इनहेरेंट एक स्पेस है, उसी स्पेस में वो या उन्हीं 2-3 स्पेसेस में ही वो सीन होनी चाहिए आइडियली। तो इसको ही इतने भर को समझना, इस इतने भर की जानकारी होनी चाहिए मिजॉन्सिन में, सो दैट आप अपने मिजॉन्सिन को शार्पन करें। तो सेटिंग वहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है। सेटिंग से और सेटिंग से मतलब स्पेस से मतलब खाली कमरा ही नहीं हो सकता है, या सेटिंग स्पेस से मतलब केवल तुम्हारा स्पेसिंग सेटिंग स्पेस से मतलब कबर्ड भी हो सकता है। एक कबर्ड भी एक सेटिंग बन सकता है, एक स्पेस है, इंपॉर्टेंट स्पेस हो सकता है, जो कि फंक्शनल है, क्योंकि उस कबर्ड से मैं उस मोमेंट पे, उस सीन के उस मोमेंट पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज घटित हो गई। तो कबर्ड के अंदर में कुछ हो सकता, फाइल्स हैं या कुछ ऐसा, कोई ऐसी चीज रखी हुई की बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म के लिए, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी है। तो वो उस स्पेस कबर्ड भी हो सकता है, तुम्हारा कमरा भी हो सकता है, तुम्हारा घर भी हो सकता है जिसमें कई कमरे हैं, वो भी सेटिंग कहलाया जाता है। सेटिंग तुम्हारी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है जिसमें कई ऐसे फ्लैट्स हैं। सेटिंग तुम्हारा एक मोहल्ला हो सकता है, वो भी सेटिंग कहला सकता है। सेटिंग पूरा का पूरा एक शहर हो सकता है। मुंबई अपने आप में एक सेटिंग बन सकता है, अगेन विद रेफरेंस टू द स्टोरी, कॉन्टेक्स्ट क्या है उस सिनेमा, उस स्टोरी में उसका रेलेवेंस कितना है। अगर उस स्टोरी में उस कॉन्टेक्स्ट में सेटिंग मुंबई को कहा जा रहा है, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना कि मुंबई एज अ कैरेक्टर, तो अगर वो सेटिंग मुंबई या फिर हैदराबाद है या फिर बनारस है या तुम कहाँ प्रयागराज है, तुम दिल्ली में हो, दिल्ली है, तो दिल्ली भी सेटिंग बन सकता है। संदर्भ क्या है वो इम्पोर्टेंट है काम। और वो तुम्हारे कमरे के अंदर का एक छोटा सा शेल्फ भी हो सकता है, जहाँ चीजें रखी हुई हैं किसी कारण से। उन चीजों का भी वहां रहना ऐसे ही रैंडम नहीं है, कुछ कारण। तो सेटिंग ये चीज होती है। लाइटिंग एंड कॉस्ट, लाइटिंग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ लाइटिंग के लिए रिजवान, सॉरी कृष्णा, स्क्रॉल डाउन कर जरा एक बार। करते जाए, अभी आगे, बहुत आगे, बहुत आगे। आई थिंक कर्सर को ये पेज नंबर 115 है ना, 145 पे लेके आ। 145। आई थिंक आगे बढ़ देते। इसके बाद लाइटिंग आएगा तो इसके बाद है क्या? पता नहीं, देख।
टाइम स्पेस टाइम आया, टाइम के बाद आएगा। सर्च करना, सर्च का है ऑप्शन। सर्च का नहीं है। रुक गया, मैं एक खोलता हूँ, मैं खुला हुआ है। अच्छा, एक काम कर, पेज नंबर 127 पे आ जा। 127। 127 पे आ जा, उसमें जो है उसमें इसके बाद, हाँ ये वाले इमेज पे रुक जा, अभी यहाँ पर चलते हैं, हाँ बस यहाँ पर रुक सिक्स्थ सेंस। जा। ना लाइटिंग कैसे इंपॉर्टेंट है, मेजॉन सेन का डेफिनेशन एक बार फिर से हम दोहराते हैं, थोड़े अलग संदर्भ में। मेजॉन सेन का मतलब ये हुआ, कह लो आप, बुकिश डेफिनेशन नहीं है मेरा, थोड़ा एक्सपेंडेड डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट, कि हर वो चीज जो तुम्हारी फिल्म में, जो तुम्हारे फ्रेम में दिख रही है और जिस तरह से दिखाया जा रहा है, वो तुम्हारे ऑडियंस के व्यूइंग एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर रही है, तुम्हारे कंट्रोल, तुम जैसे चाह रहे हो वैसे अफेक्ट कर रहे हो तुम्हारे व्यूअर्स के, ऑडियंस ऑडियंस के व्यूइंग एक्सपीरियंस। ये बात समझ में आई कुछ, हाँ सर। कि फ्रेम में तुमने हर वो चीज, जैसे सेटिंग हो गया था कि स्पेस, स्पेस से मतलब केवल चार दीवारी नहीं होती, उसमें चीजें रखी होती हैं, उसमें एक शू रैक हो सकता है, उसमें कपड़े टंगे हुए हैं, उसमें एक पोस्टर है, उसमें पेंटिंग है, उसमें दुनिया जान की चीजें हैं, थोड़ा कचरा है, थोड़ा कुर्सी है, ये सब मिलकर के वो स्पेस बना था। वो जो स्पेस बना था तुम्हारे कमरे का जहाँ वो सीन हो रही थी, उसमें जानबूझ करके, लेट से मेरा, चूंकि मेरा कैरेक्टर जो है थोड़ा सनकी है, या वो सीन में वो कैरेक्टर डिस्टर्ब है, तो मैंने जानबूझ के उस सीन के लिए वो स्पेस थोड़ा सा हिला दिया था। हिला दिया था मतलब थोड़ा गंदा कर दिया, थोड़ा मिस अरेंज कर, मिस अलाइन कर दिया चीजों को, टेढ़ा कर दिया, कोई पेंटिंग थोड़ी सी टेढ़ी कर दी, अ, जो कुर्सियां रखी, कुर्सी जो रखी हुई थोड़ी सी उसको घुमा दिया, किताबें जो रखी हुई उसमें एक किताब टेढ़ी है, दो तीन किताबें टेढ़ी हैं, तो ऐसे करके मैंने स्पेस थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था, जो कि नहीं दिखेगी ऑडियंस को, डायरेक्टली नहीं दिख रही वो, ऑडियंस को तो वो स्पेस को देखना भी नहीं है, ऑडियंस को सिर्फ उस स्पेस में जो हरकत हो रही है वो उस पर ध्यान देना है। लेकिन क्या होता है कि जब तुम ऑडियंस देख भी, ऑडियंस जब स्पेस में घुस के देख भी रही है ना उस शॉट को, उस कैरेक्टर को जब देख ऑब्जर्व कर रही है, तो उसकी आंखें, उसकी, उसका एक सेक्शन ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ द ब्रेन इज focusing on what the character is saying, what his behavior is, what his feeling is, everything about the character. But another section of brain ka, which is also observing the surrounding where he's placed, and it is a very subconscious. It is happening at a very subconscious level. So with mise-en-scène, I'm affecting not just his conscious viewing. I'm also hitting very hard on the subconscious viewing. I'm applying elements, I'm placing elements in my frame in a way which are going to affect his experience, viewing experience in a subconscious level. And only when I do this तीन चार पांच layers or चौतरफा वार, that my film or that scene suddenly becomes memorable. And that is what we all want to achieve. That our film becomes memorable. So to make a film memorable, we are applying mise-en-scène at every level, at a very, and which is intended to hit at a very subconscious
लेवल ऑफ द ऑडियंस। तो सेटिंग में हमने जो भी चीजें टेढ़ी मेढ़ी कर दी, बिखेर दी, कलर ऑफ द वॉल जो है वो वाइट नहीं रख करके थोड़ा सा ग्रे कर दिया, सबकॉन्शियस को हिट करने के लिए, कि इट्स अ डल डल मोमेंट। कलर्स जो लाल, हरे, नीले, पीले अदरवाइज होते हैं रूम में, उनको म्यूट कर दिया, उनको हटा, उन चीजों को हटा दिया, उनको रिप्लेस, या फिर उनको रिप्लेस कर दिया थोड़े म्यूटेड कलर्स वाले चीजों से, सो दैट सबकॉन्शियसली मैं ब्रेन को, ऑडियंस के सबकॉन्शियसली भी हिट कर रहा हूँ कि भैया इट्स अ वेरी eerie स्पेस, इट्स अ वेरी, या डरावना स्पेस, या इट्स अ वेरी unsettling space. So not just the character, my setting is also important, is playing a very important role in his viewing experience. And the character is actually going to perform, or he's performing at that moment in that setting, which is tweaked, or which I have meticulously tweaked. That was setting. What if I employ the same thing, which I will, to enhance the experience of the audience in lighting? I will definitely. I will use lighting as a very important tool to affect his experience. Now, अभी इस वाले पिक्चर में अगर हम एक एग्जांपल है लो लाइट का, बॉय बच्चा अपना फ्लैश लाइट टॉर्च से जलाए नीचे से है। एक एग्जांपल है टॉप लाइट का, ठीक है, इसमें ही आगे एक दो पेज आगे बढ़, हाँ यहीं पे रुक जाओ, चलिए वाला, ये जो बंदा गन लेके खड़ा है, इसको ध्यान से देखो एक बार। रिजवान, तुम सुन रहे हो, देख रहे हो साथ में? पूरा ये की लाइट नहीं है सर, ओनली फिल लाइट एंड बैक लाइट है इस फ्रेम में। वेरी नाइस। नहीं, तुम गलत बोल दिए, की लाइट नहीं, की लाइट है। की लाइट मतलब फ्रेंड्स, लेकिन साइड से है ना सर वो। की हाँ लाइट, हाँ हाँ हाँ, वही फिल वही। लाइट नहीं है, ठीक है। वो क्यों, की क्या होता है, फिल क्या होता है, वो भी जानने की जरूरत नहीं एट दिस स्टेज, बट मैं उस पर, हम लोग उस पर बात कर लें। पर जैसे ये वाले गन वाले शॉट में फोटोग्राफ को देख लिया अगर, ठीक है, और वो इससे पहले वाले पेज पे जाएगा, नहीं इसके बाद वाले पेज पे जाए, हाँ बस बस। अब ये जो लड़की वाला है, अब ये और उसमें क्या फर्क है, बेसिक फर्क खाली देख के बता दो। रिजवान तुम बताओ क्या फर्क है इस वाले में और इसके पहले वाले जो गन वाले शॉट का, लाइटिंग, लाइटिंग तो ध्यान। इसके पहले वाले इस पे आ जा, गन वाले पे। चल कृष्ण तू बता क्या क्या है मेजर फर्क क्या सर पहले है? वाले में जो है, पहले वाले में जो लाइट है वो सर हम्म, की लाइट दिखाई दे रहा है, और दूसरे वाले में जो है, जो लेडीज वाला है, वो तीनों तरफ से द स्किन टोन भी सर उसका, मतलब कि एक्सपोजर दिया गया वो भी सही दिया गया। हम्म, ये है सर। हम्म। दूसरे पे आ जा, एक बार दूसरे पे आ जा। अब दोनों के मूड में क्या फर्क है रिजवान? सर पहले का जो मूड है वो इंटेंस है, और हम्म, दूसरे का जो मूड है सर वो हैप्पी है सर, हम्म, मतलब स्माइल है सर। वेरी नाइस। तो क्या किया है डायरेक्टर ने, क्या चॉइस किया है? जब वो स्माइल और रोमांटिक वाला एक मोमेंट है, तो तो सर उसमें पहले वाला जो है सर वो डार्क लाइट का यूज किया गया है, तो सर वो एक से बोल सकते हैं कि वो जर्मन एक्सप्रेशन वाला सर, कि वो उसमें डार्क वेरी जो नाइस, दिखाते हैं। वेरी और नाइस। सर इसमें जो दिया गया है सर वो लाइट कलर का यूज किया गया है। देखो, गलत बोल रहे हो, एक
टेक्निकली डार्क लाइट कुछ नहीं होता, लाइट कलर कुछ नहीं होता है। सर मैं बोलूँ कुछ? हाँ कृष्णा, एक मिनट रुक जा, इसको ये खत्म कर लेते हैं। हाँ डार्क, देखो लाइट लाइट में सिर्फ दो ही एस्पेक्ट, लिट अप एरिया और शैडो एरिया। हाँ हाँ, इसमें पूरा ये की लाइटिंग पूरा उसका फेस पे, देर आर नो हार्श शैडोज ऑन आवर फेस, क्योंकि ये बहुत हैप्पी मोमेंट था एंड इट वाज सपोज टू बी ब्राइट मोमेंट, बट यहाँ पर we can see the shadows. It is also placed at 45 degrees to the character, I guess. Don't But get into these technical things, hmm, Rizwan, Krishna. okay, This sir. will because you don't know anything, and at this stage, and then if you start taking 45 degree, क्या होता 45 degree? You'll suddenly be questioned, and then you will be in a trap, and then you will be said Hmm, कि भैया तुम ज्यादा स्मार्ट हो, hmm, जितना है उतने पे ही बात करो। hmm, सिंपल सी बात है। रोमांटिक मोमेंट के लिए हम जब लाइटिंग करेंगे, तो हम नहीं चाहेंगे कोई ऐसी चीजें जो कि छुपी हो और डरावनी हो। हम चाहेंगे hmm, हर वो चीज एक्सप्रेशन खुल के निकले। हम चाहेंगे हर वो फील जो है वो खुल के निकले। और जहां डरावनी चीज चल रही है, गन फाइट चल रहा है, जहां हो रहा है, वो उसका इनहेरेंट इसका रीजन है। जब भी रियल लाइफ में तुम जब हम अंधेरा रात में बत्ती क्यों जलाते हैं बाहर अपने कमरे बालकनी में या गार्डन में? क्योंकि हम नहीं चाहते अंधेरा हो, क्यों? अंधेरा इज सिनोनिमस टू क्राइम। अंधेरा है मतलब क्राइम हो सकता है, वहां वाली फील, समथिंग रॉन्ग में हैपन। तो लाइट जला कर को बाहर, तो मेरे पापा अभी भी घर में रात में चारों तरफ बाहर का लाइट का ऑन, बिजली का बिल आया है कोई प्रॉब्लम, चारों दिशा में मीटअप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया इट इज सिंपली रिलेटेड टू क्राइम। अंधेरा है तो वहाँ क्राइम होने का चांस है, होगा, हो सकता है कि हो जाए। और लिटअप है तो वहाँ क्राइम होने का चांस कम कर देते। क्राइम से डायरेक्ट रिलेशन है लाइट या शैडो का, ठीक है? और वो चीज हमने वो यूज किया इसके पहले वाले शॉट में, गन वाले शॉट में। क्योंकि और ये बहुत ही प्रिमोर्डियल हमारा इमोशन है, ये आज का नहीं है। ये हम किताब पे नहीं पढ़े कि अरे लाइट जला के अंधेरा होने से क्राइम का चांस है। इट्स अ प्रिमोर्डियल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारा। hmm, मेरी बेटी है 5 साल की, 6 साल, साढ़े 5 साल। और मुझे पता है कि कुछ भूत और ये सब कुछ नहीं होता और कोई कर नहीं पाता, लेकिन वो जब उस कमरे से इस कमरे में आती है और इस कमरे में अंधेरा होता है तो उसको डर लगता है। मुझे नहीं डर लगता, उनको नहीं डर लगता, उसको डर लग रहा है। उसको किसी ने नहीं बोला है कि अरे डरना, डर के जाओ, छुप बच के रहना, अरे वहां कुछ हो सकता है, नहीं। वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर, सदियों से पीढ़ियों दर पीढ़ियों का इन्फॉर्मेशन है कि जहां hmm. अंधेरा है वहां सतर्क रहे। It's और hard coded in the body. हाँ सॉरी, It's hard coded in the body. इट्स हार्ड कोड, Programmed. इट्स प्रोग्राम्ड, Hmm, इट्स सिमिलरली प्रोग्राम्ड कि व्हेन यू स्मेल समथिंग एंड यू नो कि दिस इज एडिबल hmm, और दिस इज नॉट एडिबल। hmm, Or when the baby takes birth, immediately she goes and she knows how to suckle the nipples hmm, of mother's breast. hmm. उसको तो नहीं Instinct. सिखाया, तो Yeah. इंस्टिंक्ट, वो तो प्रोग्राम्ड है ना। Hmm, और काफ, काऊ का काफ जब निकलता है, पैदा होता है, निकलते गिरते साथ ही वो चारों पैर पे खड़ा होता hmm, है। उसको कौन किसने सिखाया? वो प्रोग्राम। ऐसी कुछ चीजें जो हमारे इमोशंस के दायरे में प्रोग्राम चीजें हैं, जैसे कि डार्क से बचते रहो, सतर्क रहो, ये डार्क में कुछ खतरनाक जीव छुप के बैठा हो सकता hmm. है। ये आज Fear. का नहीं, ये 1 लाख साल पुराना इंफॉर्मेशन Hmm, जो hmm, हमारे पूर्वजों ने झेला है अंधेरे में। वो डर, वो भय हमारे अंदर उनके जीन्स के थ्रू ट्रैवल करते करते हम तक पहुंच गए। hmm, हम सिनेमा में उसी इमोशन को, उसी उन्हीं चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं hmm, और उसी को हम मिज़ान्सन में एम्प्लॉय करते hmm. हैं। हम अगर रोमांटिक सीन में वो वाला लाइटिंग कर देंगे तो कुछ अटपटा लगेगा, वैसे ही जैसे हम बोर्ड रूम मीटिंग वाला गार्डन में कर Hmm, दिया, hmm. वो अटपटा लगेगा यार, ये कुछ तो लफड़ा चल, अंटिल की ओके देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट की स्टोरी का डिमांड है उस मूवमेंट पे कि आप उसको लो की लाइटिंग पे करिए या फिर हाई की लाइटिंग। If it's a erotic scene, then that light mighting, that lighting might. एग्जैक्टली, बिकॉज eroticism is akin to or synonymous to छुप के, Uh, because sex is something that we do not do openly.
Sex is again something that we do, in our own Closed space, closed space, So definitely eroticism with that lighting will work. You know, definitely it will work. But it won't. It will definitely not work when two romantic couple are having a good time without any reason standing in shadow. This will never work. People want to see that beautiful moment, the open space, the lit up area. So this is what the lighting is important for. How lighting can affect your audience's viewing, and which is when we say everything that's in the scene. mise en scène is जो भी दिख रहा है सीन में है, दिख नहीं रहा, सॉरी, जो भी सीन में है, व्हाट्स देयर इन द सीन, उस सीन में लाइटिंग भी कैरेक्टर का, उस सीन में सेटिंग हो गया, उस सीन में लाइटिंग भी है, ठीक है? उस सीन में बाय द वे कट्स भी होने वाले हैं, वो बाद में है। उस सीन में बाय द वे साउंड डिजाइन भी है, वो भी बाद में है, जो ये किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि किताब ने डायरेक्टली फ्रेंच थिएटर से बोरो कर लिया था, जहां कट्स थे नहीं, जहां साउंड डिजाइन का मैटर कोई वैल्यू नहीं था। तो अब हम लाइटिंग को एक तरह से हम लाइटिंग यहीं पे वाइंड अप करेंगे, नहीं तो 8 बज गया ऑलरेडी, बिकॉज आई हैव टू शो यू समथिंग एंड डिस्कस ऑन so anyways, so that is what is uh, lighting in a very basic, जो भी मैंने बताया वैसे ये बेसिक नहीं है, बेसिक थोड़ा एडवांस ही है। अगर समझ में आ रही है चीजें समझ के रखना अच्छी बात है। वापस से डेफिनेशन में आ जाओ, क्या बचता है नेक्स्ट, कॉस्ट्यूम एंड मेकअप। तो अगेन कॉस्ट्यूम एंड मेकअप जो है, उसके लिए जो मैंने देखो उधर पेज नंबर 10 वाला जो फोटोग्राफ है ना, वो वाला फोटोग्राफ है। कहाँ गया? आ गया, आ गया, नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ, इसके बाद वाले पेज पे आ। नहीं, इसके भी बाद है। हाँ, ये दिस, नो, ये जो भी फिल्म है फ्रीक ओरलैंडो, मुझे नहीं पता, मैंने शायद देखी नहीं है, नहीं देखा मैंने। बट अगर आप ध्यान दें और इसमें इस तरह का जो कॉस्ट्यूम बनाया है, अगर अगर मान लें कि रैंडमली मैं अपने फैंसी, ऐसा लग रहा है फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बैठे, इजंट इट? रिजवान मेरे भाई, आप हो साथ में? लेकिन हो सकता है कि स्टोरी में ये बिना इस कॉस्ट्यूम के वो स्टोरी को बहु कम्युनिकेट करना पॉसिबल। आप लोगों ने स्क्विड गेम्स देखा क्या? हाँ उसमें कोई कॉस्ट्यूम है पर्टिकुलर? हाँ हाँ, ये प्लेयर्स को ग्रीन जर्सी देता है और जो मतलब वॉलंटियर्स होता है उन लोग ब्लैक ड्रेस पहनता है। करेक्ट। तो एक तो आपके चेहरे पे कॉस्ट्यूम का एक इम्पोर्टेंस है, कि कैसे स्क्विड गेम्स में ये प्लेयर है, हम्म, इस तरह का कॉस्ट्यूम बनेगा, ये बंदा ये है, इस तरह का कॉस्ट्यूम बनेगा, तो ये तो डायरेक्ट है कॉस्ट्यूम का, यूजिंग कॉस्ट्यूम टू कम्युनिकेट, कन्वे स्टोरी। मतलब ये कॉस्ट्यूम के पहनने के, क्या कॉस्ट्यूम पहना उससे ही समझ में आ गया कि वो कैरेक्टर क्या है, मतलब बिना ये शब्द बोले हम कम्युनिकेट कर दिए। एक और तरीके से हम कॉस्ट्यूम यूज कर सकते हैं। अब जैसे हम लाइट वाली बात करते हैं, ठीक है, लो की लाइटिंग और हाई की लाइटिंग, जिसको जानने की जरूरत नहीं है, जो रोमांटिक लाइटिंग है और एक मान लो कि तुम्हारा क्राइम वाला लाइटिंग है, फिल्म नोआर वाला। फिल्म नोआर क्या है, वो तो पिछले क्लास में मैंने सिखाया, बताया था, याद है? हाँ सर। चलो ठीक है। तो अगर मान लो मेरा कैरेक्टर है जो अगेन रोमांटिक फिल्म है,
बहुत बहुत मजेदार रोमांटिक लाइफ में अभी भी हुआ है, या उसको उसकी शायद अभी भी गर्लफ्रेंड से उसका कमिटमेंट हो गया है, गर्लफ्रेंड मान गई है उसका, और जो भी उनका अफेयर शुरू हो गया है, एंड इज जनरली वेरी हैप्पी इन लाइफ, वेरी वेरी हैप्पी इन लाइफ. In that case, why will I, as a filmmaker, as a director, not show him in vibrant, colorful dresses, for example? Why will I not show him in, excitement, something that reflects excitement? Because even if you notice, even how do we behave in our general life? हम जब कभी बीच पे जाते हैं या कुछ दोस्तों के साथ जाते हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है, मजेदार इवेंट करने हैं, तो वी ड्रेस अप वेल, bright colors, yellow shirt and t-shirt and all we put. Why do we put that? Why don't we put that and sleep at night? You see, you getting a point. There's a reason. We feel that vibrant color. We want to get attracted by others because we are in that mood. We want to attract others. We want to uh, uh, we want to attract others and we want to get attracted by others. दोनों से एक ही बात हो गई ना दोनों तो. And we also want to look at women or girls, pretty women, and women also dress like that when they're happy and excited and they're going for a mela. They put on all colorful dress. So as a filmmaker, why will I not exploit this emotion, which is a very basic emotion, you know? The moment you step out, a girl steps out of her house, she will apply some very minimal but some makeup, at least एक छोटा सा lipstick or something. Why does she do that? Because she wants to feel good about it. She wants to feel attracted, uh, about it. And that ऐसा नहीं, sexual attraction की बात नहीं है, normal general attraction. And that's how a young boy also, when he goes out, दिन भर वो चड्डी में और बनियान में घूमता रहेगा, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलेगा, खेलने के लिए जाएगा या कुछ शाम को टहलने निकल रहा है दोस्तों के पास, he will dress up well, he will comb his hair, because he wants to look good, he wants to feel good. ये बहुत this is again a very primordial information. ये आज का information, ये आज का रवैया, ये लाखों सालों का एक information है जो हमारे जेनेटिक सिस्टम में आ चुका है. तो हम वो information को क्यों नहीं एक्सप्लॉइट करें फिल्म? उस कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम के कलर से लेकर के और उसके मेकअप से लेकर के हम उसको क्यों नहीं एक्सप्लॉइट करें, उसको एम्प्लॉय करें उस पर्टिकुलर इमोशन को एनहांस करने के लिए. I think the more we could tap into their subconscious mind and tell a story, the better our film would be. Yes, it's all about subconscious mind, because this is not direct information that we are passing on to the audience. This is skewed information. This is subliminal information, next layer information. First layer, front layer is something else. Front layer is an actor, talking something, saying words in words, communicating in words. Second layer is colors and costumes and makeup and whatever, lighting. This is all second layer. So hence costume and makeup becomes very important again as a part of our mise-en-scène. There was something else I wanted to add to this. I'm forgetting right now. अरे अभी ख्याल आया था दिमाग में, इंटरेस्टिंग चला गया. हाँ, मतलब वही कि अगेन कि बंदा बहुत एक्साइटेड है, ये है, खुश है, लेकिन हम कॉन्ट्राडिक्ट या बॉडीली फिजिकली बहुत एक्साइटेड है, लेकिन हम वो स्पेस में वो सारे एलिमेंट्स डिप्रेशन वाले एलिमेंट्स रखे हैं. उसका कपड़ा डिप्रेशन वाले कलर्स से रिफ्लेक्ट कर रहा है.
तो इवेंचुअली ना ऑडियंस को समझ में आ जाएगी भैया ये जो एक्साइटेड है ये शायद ऊपर ऊपर दिखा रहा है, अंदर से ये थोड़ा सैड है, gloomy है, dark है। हाँ वो याद आया मैं क्या बोलना चाह रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिर्फ ये ख्याल सिर्फ हमारे साथ ही नहीं होता है, ये हर जानवर में होता है। जिससे कभी बारिश होने वाली है और भयंकर आंधी तूफान आने वाला माहौल है, ठीक है। रिजवान ने भी देखा होगा दिल्ली में भयंकर होता है, तूने भी देखा होगा हैदराबाद में होता ही होगा। जब कभी बारिश होने वाली होती है तो एकदम अंधेरा हो जाता है और तुमको समझ में आया तो भैया तूफान वाला स्पेस है, टाइम हो कभी भी आ सकता है। तो ना उस मोमेंट पे जब अगर गौर करोगे तो हमारा हार्ट बीट थोड़ा हाई होता है और हम सब थोड़े से भयभीत होते हैं। भयभीत का मतलब क्या कि थोड़ा अनसेटलिंग फीलिंग होता है, वो फीलिंग बहुत हैप्पी फीलिंग नहीं होता है। तूफान वाला फीलिंग, डरावना भय वाला फीलिंग होता है उसमें। और वो सिर्फ हमारे साथ ही नहीं होता, वो पक्षियों में भी होता है, वो जानवरों में भी होता है। वो अनयूजुअल सेटिंग है इसलिए। हाँ क्योंकि वो अनयूजुअल सेटिंग है और वो उसके आने के बाद तबाही होती है। ये हमें इंफॉर्मेशन मिला हुआ है, पता है लाखों साल का, कि ऐसा जब भी हुआ है। तूफान आने का जब फीलिंग आता है तो उसके आके जाने के बाद तबाही हो चुकी होती है। किस्मत होगी तो नहीं होगी और किस्मत खराब हुई तो तबाही, तुम्हारा घर टूट जाएगा, तुम्हारे घोंसले टूट जाएंगे और तुम्हारा बाढ़ आ जाएगा और तुम खाना नहीं रहेगा। ये सब हो चुका है, हर क्रीचर के साथ ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन होके आ चुका है। तो वो वाले मोमेंट में हर क्रीचर थोड़ा सा सतर्क या थोड़ा सा भयभीत, हल्का कहीं ना कहीं रहता है। खुश रोमांटिक वो हम दिखा दें भले फिल्मों में और बोले छत पे चढ़कर वाह क्या मौसम है ये है वो है, लेकिन it is actually a very unsettling when it goes extreme, you know. So why should I not, as a filmmaker, exploit this primordial, emotion in my shot taking? If I have to create bhai in my audience, why will I not use a lighting and colors in my frame which resemble तूफान का अंधेरा वाला space? It will definitely hit the audience subconsciously somewhere. It will Why? create the atmosphere. Correct. It will create the atmosphere, and on top of that, my actors are performing, to their best. So that's how costume becomes important. Next, क्या है? Last is of course acting. लाइटिंग हो गया। Acting, performance. हाँ Characters भी। हाँ एक मिनट पीछे 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 आ पीछे आ पीछे आ और पीछे आ। हाँ आगे आगे, धीरे 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 और आगे। हाँ बस ये वाले, अब ये इसका 4.71 वाला जो इमेज है ना, या हाँ 4.72 का हाँ हाँ इमेज। अब मैं ऐसे इमेज, ये वाली लाइटिंग, ये तो एक्सट्रीम हार्श लाइटिंग, ठीक है, एक्सट्रीमली लो लो की चारोस्कुरो लाइटिंग है। अब हाँ इसमें मैं किस तरह का इमोशन को सेट करूंगा? अनसेटलिंग फियर अनसर्टेनिटी करेक्ट। थोड़ा। अगर या अगर रोमांस की करूंगा तो वो वाला रोमांस की, मतलब जहाँ पे अब छुप के अभी, इट इज मोर सेंसुअल, इट इज मोर सेक्सुअल। दैट रोमांस इज नॉट प्योर इनोसेंट लव वाला रोमांस, इट इज मोर सेंसुअल वाला रोमांस जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। यू गेटिंग पॉइंट? हाँ यस। And if I have to show two lovebirds who have just met, I will not use this lighting definitely. हेलो I हेलो will. हाँ yeah, this one. सर, वो एक्सट्रीम लो की लाइट कहा आपने सर? एक्सट्रीम लो की लाइट सर, लो की लाइट सुना लेकिन एक्सट्रीम लो की लाइट सर ये क्या? अरे बोलने वाली बात है यार, मैंने बोल दिया एक्सट्रीम लो की लाइट, ऐसा कुछ नहीं, लो की लाइट होता है। बट लो की में भी बहुत लो, अरे ऐसे एक्सट्रीम लो की में से मतलब है कि फिल एकदम जीरो है। तुमको पता है लाइट 3 पॉइंट लाइटिंग वगैरह से पढ़े हो? यस सर, यस सर, की लाइट, फिल लाइट, बैक लाइट।
हाँ, तो जब आपका फिल लाइट जो है ना वो उसका उसकी मात्रा जो है वो डिपेंड करता है कि आपका लोकी का किस लेवल पे है। तो ये एक्सट्रीम लोकी इसलिए क्योंकि यहाँ फिल बिल्कुल जीरो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइड से जो की लाइट है वही है, न बैक लाइट है न फिल लाइट है। तो इसका भी एक टर्म होता है चियारोस्क्योरो लाइटिंग, वो उसकी जरूरत नहीं हाँ है इसमें जाने की। हाँ, चिरा मीन्स लाइट, ऑब्सक्योर मीन्स डार्क, इट्स इटाली वर्ड। Correct. पेंटिंग से लिया हुआ है, आई रेड अबाउट इट। Oh, oh, good that you know, but no, ऐसा नहीं थी। पेंटर्स पूरा पहले पूरा, so the theory was darkness is everywhere and it's only light which illuminates it a certain thing. So पेंटिंग में पूरा फ्रेम पहले ब्लैक कलर से पेंट करता था, उसके बाद Hmm. they used light and where it Right. is needed. So now coming to performance, the last, as per the textbook definition, the last aspect of mise-en-scène. अगेन परफॉर्मेंस पे तो हम लोग क्या बात है, वो हम सब जानते समझते हैं परफॉर्मेंस का वैल्यू इंपॉर्टेंस। परफॉर्मेंस पे इसमें स्टेजिंग भी है, मूवमेंट एंड परफॉर्मेंस। वेरी नाइस, आई एम ग्लैड कि ये पेज पे ला के रखा कि हाउ डू यू कैप्चर दैट परफॉर्मेंस आल्सो मेक्स इट यू नो डिसीजन ऑफ mise-en-scène। एक मिनट गाइस, कैन यू जस्ट गिव मी 5 मिनट्स का ब्रेक, आई 2 मिनट्स का हाँ ब्रेक हाँ। एक्चुअली। पीपल सॉरी, कम बैक। So now again, no, so okay, so where were we? Acha, question. Performance and movement. Now, performance becomes a very important aspect of mise-en-scène. कैसे? Now, यहाँ पे staging लिखा है. There are two things actually: staging and blocking. ब्लॉकिंग एंड स्टेजिंग। ठीक है? Blocking and staging. पहले इसको समझ लेते हैं roughly. रिजवान, I hope you are there with us. खाली एक बार नॉड कर दो किसी तरह से। Okay. So blocking and staging. अब ये ब्लॉकिंग क्या चीज है, स्टेजिंग क्या चीज है, इसको रफली समझते हैं, बहुत ही लेमैन टर्म। ब्लॉकिंग इज कि एक बार कैमरा लग गया सामने, यूं लग गया, अब उसके सामने उस, हाँ सॉरी सॉरी रिजवान, कुछ बोल रहे हो? सर मैं कह रहा था ब्लॉकिंग और स्टेजिंग जो है सर वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप एक्टिंग भी करेंगे तब भी, इन डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे तब भी ब्लॉकिंग और स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू माना जाता है सर। ऐसा क्यों सर? वही बता रहा हूँ, वही बताता हूँ। mise-en-scène परफेक्ट करता है, तुम्हारी mise-en-scène को पावरफुल बनाता है। मिसाल के तौर पे पहले तो समझो ब्लॉकिंग क्या, ब्लॉकिंग क्या होता है, रिजवान पता है? हैं? ब्लॉकिंग क्या होता है, स्टेजिंग क्या होता है, पता है? तो ब्लॉकिंग ये है कि सर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक मार्किंग दे देना कि क्या बोलते हैं आपकी यहाँ से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सही। और रफली स्टेजिंग क्या होता है? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। तो जैसे रिजवान ने बोला, बेसिक हाँ बोलो ब्लॉक बोलो। मतलब कैमरा मूवमेंट्स, हाउ यू कैप्चर द मूवमेंट ऑफ कैरेक्टर्स मूवमेंट। करेक्ट, मतलब 50% यू आर राइट, मतलब और देयर इज मच मोर टू इट, बट फॉर टाइम बिंग लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। So blocking is when the camera has been placed and the scene has been discussed with the actors. Scene का intent is clear, scene का scene का
reason क्या है, reason for scene being there is clear. So we just have to perform. Now that scene, let's say again, coming back to a romantics, that romantic scene can happen or boardroom वाला argument. बोर्डरूम वाला आर्ग्यूमेंट पे आते हैं, वो ज्यादा क्लियर है कि बोर्ड रूम तो ऐसा है भाई, डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक तरफ बैठे हुए, एक तरफ एम्प्लॉय बैठा है, तो उनके बीच में आर्ग्यूमेंट। ये भी हम कर सकते हैं, एक सीन, सिंपल सा सीन बना लिया, सब बैठे हुए हैं 6 कुर्सियों में अपने अपने, और कैमरा लगा हुआ है, और कैमरा जो लगा हुआ है तो कैमरा के सामने सब बैठ करके बातें कर रहे हैं, अपने अपने लाइन, सबके डायलॉग्स लिखे हुए हैं, डायलॉग्स में सारा इंफॉर्मेशन है, आपको बस बैठ करके अपने लाइंस को कम्युनिकेट कर देना है, कन्वे कर देना है इफेक्टिवली, तो सीन समझ में आ जाएगी, सीन का इंटेंट क्लियर हो जाएगा, सीन कहानी को आगे बढ़ा देगी और आप आगे बढ़ जाएंगे, अगले दिन पे आ जाएगी। एक तो ये तरीका हो गया। एक है कि भाई इसको थोड़ा डायनामिक करें सीन को, अगर हम उस सीन में थोड़ा सा मूवमेंट ऐड कर दें कैरेक्टर्स का। हमने कहा कि भाई देख, आर्ग्यूमेंट चल रहा है लेकिन बहुत ही डल सा सीन लग रहा है, थोड़ा हिलना डुलना चाहिए कैरेक्टर्स। तो एक काम कर, अपना मेरा जो मेन कैरेक्टर है, मान लो उसका नाम है वीरू। वीरू, तो एक काम कर, तू ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे झगड़ा जो कर रहा है बातों बातों में, तो थोड़ा सा उठ, एक एक पॉइंट पे उठ, उठ करके कुछ रिएक्शन दे। तो वीरू समझ गया, एक्टर समझ गया, हाँ चलो ठीक है मैं करता हूँ, फिर करता है। तो सडनली वो बातें, आर्गुमेंट होने लगी, गहमा गहमी होने लगे, बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, अब बात बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे वीरू उठता है और उससे गुस्से में ऐसा टेबल पे अपना मुक्का मारता है। और वो जो उस पूरे एक्शन में उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ खड़ा हुआ और उसने ऐसे कर दिया। उसी सडनली सीन डायनामिक हो गया। सिंपल मतलब है कि ऑडियंस अचानक से घुस गई जैसे मेरे को, अरे ये क्या हुआ, ये वाली फीलिंग आ गई। हम्म, क्योंकि उसने आपके इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया, आपको कैप्टिवेट कर लिया, अग्रेसिव हो गया। अदरवाइज वो बैठ करके भी चिल्ला करके बात करके अपना बात इंटेंस कर, बन गया। इंटेंस बन गया। एक तो ये हो गया ब्लॉकिंग का तरीका। एक मैंने कहा भाई ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ना सिर्फ एक बार खड़े होकर जो कर रहा ना वो थोड़ा ज्यादा ड्रामा हो जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि सब बैठे हुए हैं और तू खड़ा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, वीरू लेकिन खड़ा है, और फिर ये सीन चलती है, बैठता ही नहीं, वो कुर्सी है ही नहीं, उसकी कुर्सी ही नहीं है। तो सीन फिर से शुरू हुआ, रीशूट हुआ। अब इस बार हमने उसकी कुर्सी हटा दी, बैठेगा ही। अब वो बेंच बैठ नहीं रहा है, तो खड़े खड़े एक जगह खड़े होकर तो बहुत अजीब सा ही सीन बनते जा रहा है। तो नेचुरली उसने ना एक दो कदम आगे पीछे करने लग गया। उस पर भी डिपेंड करता सीन में वो मोमेंट क्या है, और क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बहुत पहले से जानता है या अभी भी जानना शुरू किया है, क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पिछले 10 साल से वो कंपनी में या एकदम नया है। अब जैसे कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जाएगा तो वो हिलेगा डुलेगा नहीं भाई, वो चुपचाप से बैठ के इंटरव्यू देगा। लेकिन उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ अगर वो पिछले 7 साल से काम कर रहा है, दे नो ईच अदर वेरी वेल, दे आर वेरी दे आर फ्रेंड्स आल्सो है, सम ऑफ देम क्लोज फ्रेंड्स। सो दे दिस दिस फिजिकल restriction will not be there. He will be a little freer, right? Again, the way he walks is suggesting the intimacy or the relationship between the two characters. In a romantic scene, if a couple have just become romantic couples, they will be a little reserved. They will not be free. Ah, gale lag jao. That won't happen. That will never happen. But in a romantic scene, a couple who have been a couple for the last 15 years, 20 years, they will not care. If they want to hug each other, they will just go jump and hop and jump and go and hug each other. And that decides or that defines their relationship, the idea of their intensity of their relationship.
Now, all of this, adding movement to your scene suddenly adds so much more of information regarding your characters, regarding your uh, the it increases the dynamism regarding the inherent emotion of the scene. Everything gets added. So adding a blocking or adding movement is so much more important, provided it is intended, provided there is a reason. If the screenplay demands कि नहीं, this scene has to happen with a with everybody sitting quietly, then if you add movement, it will be a problematic. This is the basic uh, definition of blocking. What if I use blocking to a different level now? If I have to show, if there are two characters in a scene, character A and character B. If character A is more powerful and character B is weak, how do I place that character? Where do I place the character in the frame that makes him look physically diminishing? And when the character A, which is more powerful, how do I place him or capture him in a frame where he becomes physically, visually more overwhelming? Composition. Exactly. That again is blocking. That again is important. That communicates so much more than just words. शब्दों में आदान प्रदान में बोल रहा है एक दूसरे को, परफॉर्मेंस में बोल रहा है कि मैं पावरफुल और तू छोटा है मेरे से, पर जस्ट बिकॉज मैंने उसको एक खास जगह पे खड़ा कर दिया फ्रेम में, उसको एक खास एंगल दे दिया कैमरा में, वो सडनली लार्जर देन लाइफ दिखने लग गया। और जो दूसरा वाला बंदा है जो थोड़ा सा डरा हुआ है या डिमिनिस्ड है साइकोलॉजिकली जी सर, स्टेटस। मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, एक बार थोड़ा रिपीट कर देंगे 2 मिनट? हाँ, कहाँ से गया था, कहाँ से नहीं सुना? 3 मिनट पहले डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ओके, तो हम बेसिकली ब्लॉकिंग के बारे में बात करते हैं कि कैसे ब्लॉकिंग जो है आपके उसी सीन को डायनामिक कर देता है, आपके उसी सीन में मीनिंग्स ऐड कर देता है। कि एक कपल है, हमने डिस्कस किया, एक कपल जो 20 साल से जानता है एक दूसरे को, और एक कपल है जिसकी अभी अभी उनका लव अफेयर शुरू हुआ 6 दिन पहले। अब दोनों अगर एक कमरे में बैठे हैं और दोनों को मन कर रहा है कि हग करें एक दूसरे को, ठीक है, तो जो 6 दिन पहले वाला कपल है वो उछल कूद करके जाकर के एक दूसरे को हग नहीं करे, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी अभी फिजिकली वो उतने एक दूसरे से फिजिकली फ्री नहीं हुए। तो दे विल they will take their time, they will move slowly, and possibly then they will go and hug each other. लेकिन जो 20 साल से एक दूसरे को जान रहे हैं, मैंने ऐसे दे हैव बीन थ्रू टुगेदर इन ऑल थिक एंड थिन्स, और उतार चढ़ाव सब देख चुके हैं साथ में, अचानक से उनको मन किया एक दूसरे को बहुत 10 दिन के गैप के बाद मिलते हैं और मन किया हक करना है, तो वो तो भाग के जाएंगे और लपक लेंगे। तो वो जो मूवमेंट हमने ऐड किया परफॉर्मेंस में, वो मूवमेंट केवल वो ही इतना ही नहीं है कि डायनामिक कर दिया सीन को, वो एक दूसरे के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी हाईलाइट कर रहा है कि वो कितने फ्री, कितने एक दूसरे से करीब है या डिस्टेंट है। करेक्ट। तो ब्लॉकिंग वहां पे भी काम आता है। फिर ब्लॉकिंग का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, कि मान लो जो हम बात करें कि मान लो दो व्यक्ति है और स्टेटस में एक व्यक्ति एक जो है वो स्टेटस में ऊपर है और व्यक्ति बी जो है वो स्टेटस में नीचे है। या स्टेटस में व्यक्ति ए पावरफुल है, व्यक्ति बी नीडी है या वीक है। अब मैं उसको वीक वाले व्यक्ति को कहाँ फ्रेम में प्लेस करूंगा कि वो फिजिकली भी लेंस की क्वालिटी के कारण फिजिकली भी डिमिनिशिंग दिखाई दे, छोटा दिखाई दे, कमजोर दिखाई दे, और व्यक्ति ए जो कि पावरफुल है उसको मैं फिजिकली फ्रेम में कहाँ प्लेस करूंगा कि वो फिजिकली पावरफुल दिखाई दे। कौन सा कैमरा एंगल लगाऊंगा उसके लिए कि वो ऐसे दिखाई दे, विजुअली पावरफुल?
और दूसरे फिल्म में कौन सा कैमरा एंगल लगाऊंगी जिसमें वो कमजोर दिखाई दे। ये इंफॉर्मेशन जो है, ये अंडरस्टैंडिंग, ये भी ब्लॉकिंग का हिस्सा है। और ये भी ऐड करती है तुम्हारे एक्टर के परफॉर्मेंस। मैंने एक्टर तो परफॉर्म कर रहा है कि हाँ मैं पावरफुल हूँ और मैं दूसरा वाला कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन उनके परफॉर्मेंस को हमने एनहेंस कर दिया। कि जब कई फिल्मों में तुम देखो, 80s की फिल्मों में अमिताभ बच्चन जब आता था, 70s 80s में उसकी जब इंट्रोडक्टरी शॉट होता था उसका, वो हमेशा, जैसे एक एक तो बहुत ही कॉमन सा शॉट है, कार से निकलता है हीरो, तो कैमरे में से उसके पैर दिखते हैं, और फिर धीरे धीरे कैमरा टिल्टअप होता है, टिल्टअप होता है, टिल्टअप होता है, और हम हीरो को, अमिताभ बच्चन को यूं खड़ा देखते हैं, लंबा अमिताभ बच्चन। और जैसे ही वो आता है सीन में, लोगों के जान में जान आती है, हाँ एक आदमी आया है जो अब हमें, जो इस राक्षस को मारेगा यार, वो बर्बाद करेगा, जो अपना जो भी विलन है। हमने उसको ऐसा फ्रेम ही कर दिया, ऐसा ऐसा उसको कैप्चर किया कि वो ह्यूज दिखाई दे, मुझसे ज्यादा बड़ा दिखाई दे, मुझसे ज्यादा पावरफुल दिखाई दे, इंसान नहीं दिखाई दे, लार्जर देन लाइफ दिखाई दे, बिगर देन, सुपर ह्यूमन दिखाई दे। समझ में आ रही है रिजवान? तो ये सब चीजें जब हम एम्प्लॉय करते हैं, और उसी कैरेक्टर को, उसी डल से परफॉर्मेंस को हम सडनली उसमें आग लगा देते हैं, और तुम्हारा सीन जो है भयंकर डायनामिक हो जाता है। और तुम्हारी ऑडियंस अब केवल एक्टर को ही नहीं देख रही है, उसके डायलॉग्स को ही नहीं सुन रही है और स्टोरी समझ रही है। तुम्हारे तुम्हारे एक्टर, तुम्हारे ऑडियंस, तुम सबकॉन्शियसली उस फ्रेम को देख रही है जिसमें कि वो कैरेक्टर बहुत बड़ा दिख रहा है, या उस फ्रेम को देख रही है जिसमें वो कैरेक्टर बहुत छोटा दिख रहा है, या उस फ्रेम को देख रही है जिसमें वो कैरेक्टर बहुत ही तुच्छा सा दिख रहा है, इनकॉन्सिक्वेंशियल दिख रहा है, या उस फ्रेम को देख रही है जो कि उस जिसमें कि उस कैरेक्टर को मैंने ऑल माइटी, ऑल पावरफुल बना दिया है, और वो वहां से भी इंफॉर्मेशन ले रही है सबकॉन्शियस। दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ mise, दैट इज ब्लॉकिंग। Blocking is placement of characters in the frame and making them move. Now, all that placement of characters, एक बड़ा और एक छोटा, और and at the same time making them move in the frame, everything is meaningful. ऐसे बगैर रीजन के नहीं है, बेवजह नहीं है, बिला वजह नहीं है, रीजन है। उस रीजन के तहत वो वहां खड़ा है, कैमरे के सामने या पीछे, उस रीजन के तरह तहत वो बैठा है या स्टैंडिंग है, उस रीजन के तहत वो लेफ्ट से राइट मूव करता है, या राइट से लेफ्ट मूव करता है, या आगे से पीछे मूव करता है, और वो सब रीजन के तहत होता है। और ये डिसाइड करता है हमारा मिस्टेक्स। अभी के लिए इतना बहुत ज्यादा है, ये एडवांस लेवल पे पहुंच गए हम, तुम्हें घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड दिस वाज ब्लॉकिंग। स्टेजिंग ऑन द अदर हैंड इज, how do you capture that scene? How? Using your camera. Staging is when the camera gets involved. Staging is, blocking is all movements of the actors. Staging is all whatever, how the camera is moving and capturing the entire thing. Is that now again the same logic? Okay, when do you take the camera to character A, and when do you shift the camera to character B? This is also important. This communicates much more. Maybe character is talking, 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 but gradually you shift the camera from character A to character B, who is just listening, listening, listening. अभी ए बात कर ही रहा है, पर हम बी पे आ चुके हैं, क्योंकि हमें बी का रिएक्शन उस समय ऑडियंस को दिखाना जरूरी है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, एंड कम्युनिकेट करना कहानी में कुछ और, मोर देन व्हाट दे आर सेइंग। कम्युनिकेट करना है वो चीजें जो कि अनसेड है, जो कि सेड नहीं है, या शब्दों के परे हैं। So that's where staging and blocking and performances and character actors become a part of music. Now that, for the time being, my friends, is more than enough
ऑफ मेजॉनसन, इससे ज्यादा मेजॉनसन पढ़ोगे पागल हो जाओगे, लिटरली पागल हो जाओगे, तो पागल खाने जाना पड़ेगा, सर फोड़ोगे बैठ करके। अब मैंने एक फिल्म आज का शेड्यूल था, एक आधे घंटे की फिल्म है, मैं वो लिंक शेयर करता हूँ वैसे अभी। द आइडिया वाज ऑल्सो कि वो फिल्म देखो और फिर फिल्म देख करने के बाद हम फिर डिस्कस करें मेजॉन से, उस फिल्म से रिलेटेड। पर अभी तो आधे घंटे का तो समय नहीं है मेरे को। एक एक 2 मिनट तो मैं एक बार देखता हूँ, यूट्यूब पे एक और फिल्म है, छोटी फिल्म है, वो अगर मिल जाती तो मैं वो लिंक शेयर करता हूँ, उसको देख करके हम उस पर बात करते हैं मेजॉन से। एक फ्रेंच फिल्म। वाह, मिल गया। चल, यूट्यूब में ये एक फिल्म है, यहाँ मैं शेयर कर दूं क्या, कि अपने में एंड पे देख लोगे? अगर आप डिस्कस करना चाहते तो अभी देख लेते, नहीं तो। नहीं नहीं, अभी देख के हम डिस्कस करेंगे, आधा हाँ घंटा है। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये यहाँ से शेयर करूँ अपने स्क्रीन से, या तुम अपने अपने एंड पे देखोगे इसको? मुझे कैसा भी कोई दिक्कत नहीं होगा तो रिजवान। अपने अपने एंड पे एक बार क्लिक करके देखो वो ये लिंक काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, हाँ काम कर रहे हैं सर। काम कर रहा है? हाँ, रिजवान, रिजवान रेस्पॉन्ड कर दो, काम कर रहा है कि नहीं तुम्हारे एंड पे। अब ये फिल्म देखो, और 12 मिनट बाद, जो भी 12-13 मिनट के बाद हम फिर से इस पे बात करते हेलो सर। हैं। हाँ रिजवान, एनीवेज अब टाइम भी खत्म हो गया है, तो विल डिस्कस अबाउट द फिल्म टुमारो। हम्म आई डोंट नो, आई थिंक गलती से ना बहुत गंदा रेजोल्यूशन वाला मैंने लिंक दे दिया था। हम्म एक काम करना, लेट मी सी बेटर रेजोल्यूशन है अगर, लेट मी ओनली गिव यू और वॉच दिस वंस अगेन। क्या समझ में आई कहानी क्या है, हाँ सर। बता। वाइफ, इट्स अबाउट वाइफ एंड हस्बैंड। वाइफ स्टार्टिंग पहला मीजांसन में वी सी वाइफ प्रिपेयरिंग द डिनर टेबल, गेटिंग एक्साइटेड फॉर हिज हस्बैंड, and but from the next scene we see husband bringing a big gift for a for his wife as a gift, and we see the obstacles or the conflicts he faces through to passing to reach her. In the meanwhile, she waits. She is hungry. She is attracted to food, but वो देखता है वेट करके द लास्ट शी ईट्स एंड गो, एंड जब वो पहुंच जाता है वहां पर पूरा वो तो काके सो गया होगा, सो ही सिंपली ईट्स एंड स्लीप्स। ओके, मतलब फिल्म क्लियर है, बट इफ आई मे आस्क यू, what exactly is the film about? What do you say? It's
I mean, both the people want to spend time with each other, but the world actually sometimes Okay, it never acts. think about it. We'll talk about it tomorrow. Okay, think about it. If it is a film about the romantic couple, or if it is a film larger, there's something larger story also. Think about all these things. Keep in mind. Watch the film again if you can, and a better print. Find a better quality. Watch it again. कल बात करते हैं फिर इसमें. ठीक है. Okay, sir. चलो फिर अभी रखते हैं फिर, है ना. रिजवान, कल आ जाओ और कल बात करेंगे इस पे, मिजॉन सेन पे इसके. ठीक है. ओके, Okay, sir. Bye, बाय. sir.